السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم شریعہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا بطور خاص صحیح معنوں میں دین کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، تو اس میں سے ہم کتاب الجامع میں باب الترہیبی من مساوئ الاخلاق یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا سبق نمبر 12 ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں احادیث کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ تو یہ اوپر والی 3 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیتجنب الوجہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جب قاتل لڑے احدکم تم میں سے کوئی ایک فلیتجنب تو چاہیے کہ وہ بچے الوجہ چہرے پر مارنے سے۔ تو کیا پتہ چلا اس حدیث میں چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے چہرے پر کوئی بھی چیز مارنا منع ہے، یہاں تک کہ کوئی مالک اپنے غلام کو یا اپنے خادم کو بھی کسی بھی چیز کے حوالے سے نہیں مار سکتا، اس کے چہرے پر نہیں مار سکتا۔ اسی طرح کوئی استاد بھی شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے یا سزا دیتے وقت بھی منہ پر کوئی چیز نہیں مار سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اذا قاتل احدکم اخاہ فلا یلتمن الوجہ۔ کیا مطلب کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو منہ پر تھپڑ نہ مارے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے، جبکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو قاتل کی جگہ اذا ضرب احدکم کے لفظ ہیں، یعنی صرف لڑائی میں ہی نہیں، کسی بھی وجہ سے اگر مارنے کی ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو چہرے پر نہیں مارنا، چہرے پر مارنے سے بچیں۔ آپ نے دیکھا نا ایک کھیل ہے باکسنگ، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس لیے پھر اس حدیث کے مطابق یہ وحشیانہ کھیل حرام ہے۔ اور ایسا کیوں ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، چہرے پر مارنا منع کیوں ہے؟ چہرے پر مارنے کی حرمت، اس کی ایک وجہ تو صاف ظاہر ہے نا کہ یہ انسان کے حسن و جمال کا مظہر ہے، اور ویسے بھی آدمی کے یعنی انسان کے اکثر حواس، مثلا ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، یہ سارے حواس کہاں پر ہیں؟ چہرے میں ہی موجود ہے نا۔ تو چہرے پر مارنے کی صورت میں ان حواس کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ان میں سے ان حواس میں سے
कोई ना कोई हिस्स इंसान की खराब हो सकती है ना। थप्पड़ जोर से मारे तो हो सकता है कि उसके कान तक इतनी जोर से जरब पड़ जाए कि कान के पर्दे फट जाए ना, उसको सुनना बंद हो जाए। या खुदा ना खास्ता मुंह पर थप्पड़ मारते वक्त आंख में कुछ लग जाए, फिंगर लग जाए, नाखून लग जाए, तो आंख की झिल्ली को प्रॉब्लम आ जाए, बंदा देखने से आजिज आ जाए। या खुदा ना खास्ता उसकी जबान ही उसके दांतों तले आ जाए, उसकी जबान को कट लग जाए, उससे ठीक से बोला ना जाए ना। तो इस तरह से बहुत सारी कबाहतें हैं मुंह पर मारने से जो इंसान को बीमारी में मुब्तला कर सकता है। तो इसी तरह एक और वजह इसकी नबी ने सलाम ने बयान फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा क़ातल अहदुकुम अखाहु फलयत फलयतजन्नबिल वजह फ़इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही। क्या मतलब कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई से लड़े तो चेहरे से बचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। तो फिर किस कदर बचना जरूरी है चेहरे पर मारने से। माओ को भी चाहिए कि जब वो बच्चों को किसी बात से डांटती है ना तो चेहरे पर नहीं मारे। माओ को भी चेहरे पर मारने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता अब आपका ये फरमान कि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत में पैदा फरमाया है, इसमें ये बात जहन में रखें कि लैसा कमिथलिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, कि अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं और वह समीउ बसीर है। यानी अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया, मगर इससे क्या मुराद है, इसकी हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन इतनी बात यकीनी है कि अल्लाह जैसी मखलूक में से कोई भी चीज नहीं है। किसी चीज को भी अल्लाह ताला की किसी भी सिफत से तशबीह नहीं दी जा सकती। जैसे देखिए इंसान देखता है तो अल्लाह के बारे में भी आता है कि अल्लाह बसीर है, देखता है। इंसान सुनता है तो अल्लाह के बारे में भी आता है कि अल्लाह भी सुनता है। लेकिन अल्लाह ताला का देखना सुनना ये इंसान के देखने सुनने से बहुत ही ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे अल्लाह ताला देखता सुनता है इंसान भी वैसे ही देखता सुनता है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि जैसे हम देखते सुनते हैं अल्लाह ताला भी ऐसे देखता सुनता है। बस हमें ये बात माननी है कि हाँ अल्लाह ताला देखते भी है सुनता भी है, मगर किस तरह से ये हमें नहीं मालूम। तो इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने इंसान को आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है तो अब हमें इस बात पर यकीन रखना है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये वही जानता है। तो इसलिए चेहरे पर मारने से बचना चाहिए। दूसरी बात कि क्या इस हदीस के रूह से काफिर के चेहरे पर मारा जा सकता है। देखें कुफार वो तो अपने कुफर की वजह से शर्फ इंसानी से महरूम है। कुफार की तो कोई तकरीम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बल्कि उनके बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया है उलाइका कल अन्आमी बल हुम अज़ल, ये लोग तो जानवरों की तरह है बल्कि उनसे भी बढ़कर गुमराह है। फिर कहीं पर इन्हें शर्रुद दवाब बदतरीन जानदार कहा गया। शायद आपको भी मालूम हो ना कि क़यामत के दिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजिर को पेश किया जाएगा ना, तो उनको एक जानवर की शक्ल में पेश किया जाएगा। इसलिए इज्जत तकरीम एहतराम ये सिर्फ मोमिन का है, काफिर का नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने सूरतुल मुनाफिकून में फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, कि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए है। और दूसरी जगह सूरतुल अनफाल अल्लाह ताला कुफार के बारे में फरमा रहे हैं फजरिबू फौकल अनाक वजरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, कि इनकी गर्दनों के ऊपर मारो और इनके हर पोर पर मारो। अब जाहिर है ना, गर्दनों से ऊपर क्या चीज है, चेहरा ही है ना। गर्दन से ऊपर इंसान की खोपड़ी है, चेहरा है। तो कुफार के बारे में है कि गर्दनों से ऊपर मारो।
अब ये तो नहीं हो सकता ना कि गर्दनों से ऊपर इतनी नफासत से मारा जाए कि चेहरे को कुछ हो ही ना, ये तो मुमकिन नहीं है ना। वैसे भी जब फरिश्ते कुफार की जान निकालते हैं ना, तब क्या होता है, यजरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, वो उनके चेहरों पर और उनकी पुश्तों पर मारते हैं। आपको पता है, जब बदबख्त रूहें हैं ना, जब वो फरिश्तों को देखती है ना तो वो जल्दी निकलती नहीं है। बदबख्त रूहों से मुराद कुफार की रूह है। तो तब फरिश्ते उन्हें मारते हैं, उनके मुंहों पे मारते हैं, उनकी पुश्तों पे मारते हैं, उनकी गर्दनों से ऊपर मारते हैं। तो फिर इस बात का मतलब है कि हदीस में जो ये आया है कि चेहरे पर नहीं मारना, ये मुसलमान के चेहरे पर मारने की ममानियत है। क्योंकि गज़वाए हुनैन में जब कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया था, तो आप अपने खच्चर से नीचे उतरे, फिर आपने जमीन से मट्टी की एक मुट्ठी पकड़ी और इसे कुफार की जानिब फेंक दिया। तो फिर वो आपको पता है कि वो जब आपने वो मट्टी व फेंकी कुफार की तरफ, साथ ही आपने ये कहा शाहतिल वजूह, कि तुम लोगों के चेहरे बिगड़ जाएं। तो अल्लाह ताला ने उन सब की आंखों को मट्टी से भर दिया और वो मुंह मोड़ के भाग गए। इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें शिकस्त दे दी। तो यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों को निशाना बनाया और उनके चेहरों के बिगड़ने के लिए खास दुआ भी की। तो फिर क्या पता चला इन तमाम अहादीस से, इन वाकयात से, कुफार के चेहरे पर मारा जा सकता है, मोमिन के चेहरे पर मारने की हुर्मत है। अलबत्ता बदले की सूरत में चेहरे पर मारना जायज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमा दिया है कि जो तुम पर ज्यादती करे, तुम पर भी ये हक है कि उतनी ही तुम भी कर सकते हो। यानी जितना तुम्हें किसी ने तकलीफ पहुंचाइए, उतनी तकलीफ, उस तरह की तकलीफ तुम भी पहुंचा सकते हो। इसी तरह सूरतुल माइदा में है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पर इस तौरात में लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और जख्मों का बदला है। यानी अगर आपके चेहरे पर मारने में कोई पहल करता है, तो जवाबन आप भी मार सकते हैं, लेकिन उतना ही जितनी आप पर ज्यादती हुई है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर हम उसे भी माफ कर देंगे ना, तो ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब हम किसी से बदला लेते हैं ना, तो बहुत कम लोग हैं जो बदले में ज्यादती ना करें। अक्सर औकात बदले में ज्यादती हो जाती है। तो जब ज्यादती हो जाती है ना, फिर मुकाबिल उसको फिर और गुस्सा आ जाता है कि मैंने तो ये किया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया। फिर बस आपको पता है, फिर ये जो कत्लो गारतगिरी है, ये दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और ये कभी खत्म नहीं होती, नस्लें तबाह हो जाती हैं। इसलिए बेहतर है हम आज ही रुक जाएं। अगर किसी ने ज्यादती कर भी दी है ना, अल्लाह की रजा के लिए उसको इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, दरगुजर कर दे। फिर अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से खुद ही आपका दिल ठंडा कर दे। तो हम ये जो अहादीस सीख रहे हैं, इसका मकसद भी तो यही है ना कि हम अपने दीन पर अमल करें, कुछ सीखें, इस दीन को समझकर, इन अहादीस को समझकर इनको फॉलो करें और अपने माहौल को बेहतर बनाएं। अब देखिए अगली हदीस में, वअन्हु अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसीनी क़ाल ला तग़ज़ब फरद्दद मिरारन क़ाल ला तग़ज़ब। वअन्हु उन्हीं से रिवायत है, किनसे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अन्ना रजुलन क़ाल, कि बेशक एक आदमी, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औसीनी, मुझे वसीयत कीजिए। क़ाल, आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर।
फरद्दद मिरारन, उसने कई बार ये सवाल दोहराया। क़ाल, आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। अब व अन्ना रजुलन, ये सवाल करने वाला कौन था? तो इसका जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने किया और आपने उन्हें यही जवाब दिया। असल में हकीकत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी वसीयतें फरमाई। यानी किसी ने आगे कहा ना कि हमें की वसीयत कीजिए, तो किसी से आपने कहा कुर रब्बी अल्लाह सुम्मस्तकिम, कि तू कह मेरा रब अल्लाह है, फिर तो इस पर कायम रहे। फिर कोई और आया, उसने कहा मुझे वसीयत कीजिए। किसी को आपने कहा ला यजालु लिसानुका रतबम मिन जिक्रिल्लाह, कि तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। और किसी को आपने कहा गुस्सा न कर। तो इसका मतलब है कि जैसे एक माहिर तबीब होता है ना, वो हर मरीज के मिजाज और उसकी बीमारी को मद्देनजर रखता है, उसके मुताबिक उसकी इलाज उसका करता है, उसके मुताबिक उसको गजा लेने का मशवरा देता है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े रूहानी मुआलिज थे, हर शख्स को उसी अमल की वसीयत फरमाते जो उसके लिए जरूरी और उसके हालात के मुताबिक होता। तो फिर जिन हजरात में, जिन साहबे कराम में गुस्सा ज्यादा होता, आप उन्हें बार बार यही वसीयत फरमाते कि आप गुस्सा न करें। तो तकरीबन हम तमाम लोगों का हाल तो यही है कि गुस्से में हम एतदाल से निकल जाते हैं। इसलिए ये आपकी वसीयत ये तमाम मुसलमानों के लिए है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से के नुकसान हमने पहले भी किसी पिछली हदीस में पढ़े थे ना, कि गुस्से में आकर तो बाज़ औक़ात आदमी वहशी हो जाता है, पागल हो जाता है, कभी अपने ही कपड़े फाड़ लेते हैं, अपने आप को ही मारना शुरू कर देता है, घर के बर्तन तोड़ देता है, चीजें उठा उठा के फेंकता है। कि अगर कभी होश में आ जाए ना, उसको पता चले मैंने फलां वक्त में ऐसे ऐसे किया था, तो खुद से शर्मिंदा हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि इंसान गुस्से से बचे। अब जो आपने फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर, तो आपको पता है कि गुस्सा एक फितरी चीज है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान को गुस्सा आए ना, बल्कि अल्लाह के दीन की खातिर गुस्से होना ये तो अच्छी बात। और इसी से तो जिहाद होता है ना। इसलिए गुस्सा ना कर का मतलब ये है कि जहां गुस्सा करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं, वहां गुस्सा नहीं करना। और वैसे भी गुस्सा ना कर, इसकी दो हालतें हैं। एक गुस्सा आने से पहले, दूसरी गुस्सा आने के बाद। गुस्सा आने से पहले ला तग़ज़ब, इसका मतलब है कि कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा आए ही ना। यानी कि हमारी आदत ऐसी बन जाए कि हमें गुस्सा आए ही ना। और ये आदत कैसे बन सकती है? हमें इस तरह के असबाब इख्तियार करने चाहिए जिनसे हमारा अखलाक अच्छा हो सके। यानी हमारे अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ शर्मो हया होनी चाहिए। हमें, हम कोई भी काम करें तो सोच समझ कर करना चाहिए। अगर किसी ने हम पर ज्यादती कर दी है, वो हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। हमें खुद से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें हर किसी से अफुव दरगुजर से काम लेना चाहिए। हर किसी के साथ मुस्कुरा के मिले, हंस के मिले। तो जब इन चीजों की आदत हो जाती है ना, तो फिर गुस्से के वक्त भी आदमी को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि गुस्सा ना आना उसकी आदत बन जाती है। तो फिर जो ये फरमाया कि गुस्सा आ जाने के बाद ला तग़ज़ब, यानी कि जब गुस्सा आ गया है उस वक्त भी गुस्सा ना करो। यानी कि अगर गुस्सा हमें आ गया है ना, तो गुस्से के वक्त हमारा जी चाह रहा बस हम अब तो ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो इस चीज से खुद को महफूज रखें, खुद पर कंट्रोल रखें। अगर गुस्सा आ भी गया है तो क्या करना चाहिए? ये इसके बारे में भी हमने पिछली अहादीस में पढ़ा था कि हमें
یا تو اپنی جگہ چینج کرنی چاہیے، اپنی پوزیشن چینج کرنی چاہیے. اسی طرح ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے. مطلب ہم ہماری جو بھی کنڈیشن ہے ہمیں وہ بدل لینی چاہیے. ہم کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں. ہم جہاں پہ اتنا ہمیں شدید غصہ آ گیا ہم وہاں اس جگہ کو چھوڑ دیں، بہتر تو یہ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ اگر آپ کو غصہ آ بھی گیا ہے نا تو آپ اس غصے میں کوئی کام خراب نہ کریں، فوراً اپنے آپ کو کور کریں، کنٹرول کریں خود پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں جہاں جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ نہ آئے. ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہو کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شعائر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پھر وہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے. پھر وہاں نہیں کسی کے ساتھ ہنس کے بات کریں، بھائی ٹھیک ہے جی آپ نے جو کہا، یا بڑے پیار سے ہنس کے ہم کسی کو کہہ رہے ہیں، نہیں بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ دین کی عظمت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کیا ہے. وہاں پہ غصہ کرنا بنتا ہے. لیکن سمجھانے کے طور پہ آرام سے کسی کو سمجھانا پڑے تو ایسے سمجھائیے کہ انسان ہماری بات بھی سن لے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ جو آپ کے گرد لوگ جمع ہے نا، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. اگر آپ سخت ہوتے نا، غصے والے ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس آتا نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل ان کے لیے نرم رکھا ہوا ہے جو یہ آپ کے پاس آتے ہیں. تو پھر اگر ہم ہر وقت غصے میں رہیں گے نا تو ہم کسی دن اکیلے رہ جائیں گے. آہستہ آہستہ سب لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ اس کو ذرا سا بھی کچھ کہہ دے تو یہ برداشت نہیں کرتا، فوراً آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تمیز بھول جاتا ہے. پھر لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، پھر ہم تنہا رہ جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں تنہا انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اگر انسان اکیلے اچھی زندگی گزار سکتا ہوتا نا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے اتنے رشتے نہ بناتا. اس کے ماں باپ، بہن بھائی، پھر اس کے ماموں چاچو خالہ پھپھو، پھر اس کے سسرالی رشتہ دار، نند جیٹھ دیور ساس سسر شوہر، پھر کوئی بھی نہ بناتا، اس کی اولاد کچھ بھی نہ بناتا. پھر اللہ تعالیٰ اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے ہمیں واقعی ہی اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. آئیے مزید دیکھتے ہیں. وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخرزون في مال الله بغير حق فلهم النار یوم القیامہ. جی اب اس حدیث میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے. وَأَنْ خَوْلَةَ الْأَنصَارِيَّةِ، خولہ انصاریہ، یہ ایک صحابیہ کا نام ہے خولہ. ٹھیک، حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک، رجالن لوگوں میں سے کچھ لوگ، یتخوزون دخل اندازی کرتے ہیں، فی مال اللہ اللہ کے مال میں، بغیر حق بغیر حق کے، فلہم پس ان کے لیے، النار آگ ہے، یوم القیامہ قیامت کے لیے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث کا؟ یہاں پر اللہ کے مال سے مراد اصل میں ہے مال غنیمت. بیت المال کے دوسرے مال بھی اس میں شامل ہیں جیسے زکوٰۃ اور ٹیکس وغیرہ. یعنی ان جو یہ والے مال ہیں ان میں نہ تو کسی امیر کو دخل اندازی کا حق ہے، نہ ہی رعایا کو دخل اندازی کا حق ہے. یعنی امیر کی ناحق دخل اندازی یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کا مال سمجھ کر اللہ ہی کی بتائی جگہوں پر عدل و انصاف کے ساتھ خرچ نہ کرے، بلکہ اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ لے اور اپنی مرضی اور اپنی
ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ चाहे खर्च करे या अपनी जायदादें बनानी शुरू कर दे। हालात तो ऐसे ही है ना, लोग मसाजिद के नाम पे, मदारिस के नाम पे इतनी इतनी रकम मंगवाते हैं और फिर अपनी ही तिजोरियां भरते रहते हैं, अपने महल खड़े कर लेते हैं, और ये मदारिस और मसाजिद वगैरह वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो ये चीज नाजायज है। तो माल गनीमत के 5 हिस्से होते हैं, जिसमें 4 मुजाहिदीन के होते हैं और 5वां हिस्सा जिसे खुमुस कहा गया है वो फिर गरीबों नादारों का होता है। तो जो अमीर होता है इस चीज का, उसको ये हक नहीं है कि वो इस माल को अपनी मर्जी से खर्च करे, अपने रिश्तेदारों को खुश करता फिरे, अपने जानने पहचानने वालों को खुश करता फिरे। ऐसा करने वाले के लिए तो आग की वईद है ना, फलहुमुन्नार यौमल क़ियामा। और इसमें रियाया की बगैर हक के दखल अंदाजी क्या है कि माली गनीमत अभी तकसीम नहीं हुआ, उसकी तकसीम से पहले ही उसमें से कोई चीज ले ले, या फिर मुसलमानों के माल में से कोई चीज अमीर की इजाजत के बगैर ले ले। इसकी मिसाल हमें एक वाकये से मिलती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम, जिस गुलाम का नाम था मुदअम, वो बतौर हदिया आपको दिया। तो एक दफा उस गुलाम ने क्या किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट का पालान उतार रहा था कि अचानक किसी ने उसको तीर मार दिया, जिससे वो मर गया। तो लोग कहने लगे कि इसे जन्नत मुबारक हो, क्योंकि वो आपका गुलाम था ना, आपकी खिदमत कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि इसे जन्नत मुबारक हो। आपने फरमाया हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जो इसने खैबर के दिन गनीमत की अशिया में से तकसीम से पहले उठाई थी, आग बनकर इस पर शोले मार रही थी। तो जब लोगों ने ये बात सुनी तो एक आदमी उठा, उसने 1 या 2 तस्मे लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रख दिए। आपने फरमाया कि ये 1 या 2 तस्मे आग के हैं। तो देखिए, माल किसी भी किस्म का है ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो माल दिया है ना, वो भी हकीकत में अल्लाह का माल है। इंसान तो इसका अमीन है, इसलिए इंसान सिर्फ उन्हीं जगहों से ले और उन्हीं जगहों पर खर्च करे जहां पर अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। फिर अगर हम वो माल कमाने या उसे खर्च करने में अल्लाह की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी करेंगे ना, तो फिर उसका अंजाम आगे। यानी कमाना कहाँ से ये भी देखें, कमाने के जराए हलाल होने चाहिए। लगाना कहाँ पे ये भी देखें कि लगाने की जगह वो होनी चाहिए जहाँ पे अल्लाह ने बोल दी। ये नहीं, देखिए हम, हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं क्योंकि पैसे हमारे हैं, हम समझते हैं हमारे पैसे हैं, हमने बैलेंस करवाए, अब हम अपने मोबाइल पर जो मर्जी देखें। फिर ऐसा नहीं होगा। माल अल्लाह का, अल्लाह का दिया माल अल्लाह की बताई जगहों पर खर्च करना है। फिर हम बैलेंस करवा के, पैकेज करवा के अपनी मर्जी से जो मर्जी नहीं देख सकते। जिन चीजों को देखने से हमें रोका गया है उनसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो माल हकीकत में अल्लाह के, हमारा नहीं है। समझ रहे हैं ना। फिर हम जो रिश्वत देते हैं, लेते हैं, इसमें ये भी चीज आ जाती है कि इससे भी बचना है। फिर लोग जो थिएटरों में जाते हैं, सिनेमाओं में जाते हैं, ये वो सब वहां जाके माल अपना लगाते हैं, या किसी भी तरीके से किसी ऐसी जगह पे जाके माल खर्च करना जहां से अल्लाह ने रोका, फिर हमने वहां माल खर्च किया, तो फिर उसके लिए फलहुमुन्नार यौमल क़ियामह। हमें तो कभी इस चीज की फिक्र ही नहीं हुई, है ना। हम तो घंटों बैठ के मोबाइल पे जाने क्या कर देख लेते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें और अल्लाह का दिया माल अल्लाह की बताई हुई जगहों पर खर्च करें और हलाल जराई से कमाएं। इसके बारे में तो क़यामत के दिन सवाल होगा ना, कि माल कमाया कहाँ से था और लगाया कहाँ पर। ये तो क़यामत के दिन इंसान से सवाल होगा बाकायदा।
अल्लाह ताला हमें माल का तसर्रुफ सही जगहों पर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी। वअन अबी ذر रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ा व जल्ल क़ाल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। अबी ज़र से मुराद अबू ज़र, हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी, रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फी मा यरवी, उस चीज के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं अर रब्बिही अज़्ज़ा वजल, अपने रब की तरफ से। और क्या फरमाया, या इबादी, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी इस चीज का सारी का मतलब है हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अहदीस बयान की गई है, उनमें से एक हदीस, यानी जिसे हदीस कुदसी भी कहते हैं, जिसमें अल्फाज अल्लाह ताला के होते हैं। तो यहाँ पे कौल, अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु, बेशक मैंने हराम कर दिया, अज़ुल्म, जुल्म, अला नफ्सी, अपने ऊपर, वजअलतुहु, और मैंने बना दिया इसको, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, मुहर्रमन, हराम, फला तज़ालमू, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। यानी अल्लाह ताला कह रहे कि मैंने जुल्म को अपने ऊपर भी हराम कर लिया, तुम्हारे दरमियान भी इसको हराम कर दिया, अब तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। इसका मतलब है अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। इस हदीस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने आप पर जुल्म हराम कर लिया कि मैं किसी पर भी जुल्म ना करूं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, सूरतुल कहफ में है, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन, अल्लाह ताला जहान वालों पर जुल्म का इरादा भी नहीं करता। तो जब अल्लाह ताला मामूली से जुल्म का इरादा भी नहीं करता, थोड़ा सा भी अल्लाह ताला जुल्म का इरादा भी नहीं करता, तो फिर वो जालिम तो नहीं हो सकता ना। तो जब अल्लाह ताला जालिम नहीं है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, तो फिर उसके बंदों पर भी हक है कि वो भी अपने अल्लाह को फॉलो करें, अल्लाह ताला की पैरवी करें, जिस काम से अल्लाह ने मना किया है उससे रुक जाएं। तो इस तरह हमें भी आपस में एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल गीबा क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम क़ाल ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरह क़ील अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूल क़ाल इन कान फ़ीही मा तक़ूलु फ़क़द इग़तबतह व इन लम यकुन फ़क़द बहत्ता। देखिए यह हदीस बहुत ज्यादा काबिल गौर है, इसको तवज्जो से सुने। क्या कहा जा रहा है इसमें, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल गीबा, अतदरूना, क्या तुम जानते हो, मल गीबा, गीबत क्या है। कालू, उन्होंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। और आपने फरमाया, जिक्र का, तेरा जिक्र करना, अखा का, अपने भाई के बारे में, बिमा, उन चीजों पर, यकराहू, जिसे वो नापसंद करे। कईला, आपसे पूछा गया, अफरअयता, क्या ख्याल है आपका, इन काना, अगर हो, फी अखी, मेरे भाई में,
माँ वो चीज जो अकूलू मैं कहता हूँ, कौल आपने फरमाया, इन अगर काना हो फी ही उसमें, माँ जो तकूलू तो कहता है, फकद तो बेशक, इगतबता तूने उसकी गीबत की, व इल्लम यकुन और अगर हो ही ना उसमें, फिर तुमने कहा फकद बहता हूँ, तो फिर तो तुमने उस पर बुहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया। तो आइए हम समझ लें कि गीबत क्या चीज है, किस चीज को गीबत कहा गया है। गीबत तो ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजुरात में फरमाया है ना, वला यगतब बाजुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। तुम में से कोई शख्स दूसरे की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम इसे बुरा जानते हो। तो फिर समझ आई गीबत क्या है। किसी की गीबत करना ऐसे ही है जैसे कोई मर जाए, हम्म, तो फिर उस मरे हुए का गोश्त खाना। देखें, अब यहाँ पे एक चीज है, नबी अलैहिस्सलाम ने गीबत का माना खुद बताने की बजाय सहाबा से क्यों पूछा? ना आपने सहाबा से पूछा है ना कि क्या तुम जानते हो गीबत क्या है, खुद नहीं बताया, बल्कि सहाबा से पूछा है। इसकी क्या वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम निहायत ही दाना किस्म के मुअल्लिम थे, इसलिए आप तालीम देते वक्त सहाबा को किसी ना किसी तरह मुतवज्जे करके उनमें इल्म की तलब पैदा कर लेते थे, ताकि जो बात हो वो उनके जहन में बैठ जाए, और अगर उनके जहन में कोई सवाल हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ऐसे ही एक दफा हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु से आपने फरमाया, क्या मुआज मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। फिर आपने उसको ये कहने के बाद, उस पर मोहब्बत जताने के बाद फरमाया कि किसी नमाज में तुम ये दुआ मत छोड़ना, रब्बी अइन्नी अला जिक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अब देखिए ना, हम किसी को कहें कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, देखो तुम कभी ऐसे ना करना, तो हम कहते हैं ना हाँ भाई उसने मुझे बहुत प्यार से ऐसे कहा था, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मुझे उसकी बात माननी है, फिर हम वैसा करते हैं। तो जब आपने हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोई तालीम दी, तो उनके साथ शफकत का इजहार फरमाया, फिर उनको बात बताई। तो आइए देखते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने गीबत का क्या मफहूम बताया। देखिए आपने फरमा दिया कि जिक्र का अखा कबीमा यकरहू, कि तुम्हारा अपने भाई के बारे में उस चीज के साथ जिक्र करना जिसको वह नापसंद करता है, तो ये गीबत है। अब वो चीज खा उसके बदन से ताल्लुक रखती है या फिर दीन से या दुनिया से, चाहे उसकी शक्ल के बारे में है या उसके अखलाक के बारे में, उसके माल के बारे में है या फिर उसकी औलाद के बारे में। इसी तरह या तो उसके वालिदैन के बारे में, चाहे उसके बीवी बच्चों के मुतालिक हो, या उसके लिबास, उसकी चाल ढाल, उसके बोल चाल, या फिर उसकी खुंदा पेशानी, या उसका रवैया अच्छा ना हो उसके मुतालिक, यानी कि उसकी जात से मुतालिक कोई भी चीज का जिक्र करना जिसका जिक्र करना उस बंदे को पसंद नहीं है ना, ये गीबत है। फिर हम ये गीबत, ये जिक्र चाहे जबान से करें या लिख कर करें, चाहे इशारे किनारे से करें, तमाम सूरतों में ये गीबत ही है। अब देखिए ना, दो तीन लोग एक जगह बैठे हुए हैं ना, तो दो लोग आपस में बात करते हैं, तीसरे को देख देख कर उसको निशाना बनाते हैं कि देखो इसने क्या पहना हुआ है, देखो ये कैसा लग रहा है, देखो इसने मेकअप कैसे किया हुआ है, इसकी ज्वेलरी देखो कितनी बुरी लग रही है, कपड़ों का कलर देखो, हाँ इसका अपना देखो, कपड़ों का देखो क्या, ये इस तरह से है ना। तो इस तरह की सारी बातें ये सब गीबत में शामिल है। बदन की कीमत क्या है? मतलब अगर उसमें कोई नक्स है खुदा न खास्ता, जैसे कोई अंधा है, कोई
अपाहिज है, लंगड़ा है, कोई काना है, किसी का कद छोटा है, किसी का रंग काला है, किसी का क्या क्या कहते हैं वो, कुबड़ा सा कहते हैं, वो हो, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये गीबत ही है। ये उसके बदन की गीबत है। दीन के बारे में क्या गीबत है कि उसको फासिक कहना, उसको चोर कहना, उसको जालिम कहना, या उसकी जो अरकान इस्लाम है उसके बारे में उसको तान करना, या उसको वालिदैन का नाफरमान कहना, उसको किसी भी तरह की कोई गाली देना, ये सब गीबत में शामिल है। दुनिया के बारे में इसकी क्या गीबत है कि उसको ये कहना कि बहुत नकम्मा है, ये बहुत बातूनी है, बहुत बोलता है, बहुत खाता है, बहुत सोता है, ये उसकी दुनिया के मामले में गीबत है। फिर अखलाक के मुतालिक क्या गीबत है, उसे बदखल्क कहना, उसे मुतकब्बर कहना कि ये गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, रियाकारी करता है, ये बहुत जल्दबाज है, या ये बुज़दिल है, या ये सड़ियल है, इस तरह के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करना, ये उसकी अखलाक की गीबत है। फिर उसके वालिदैन के मुतालिक क्या कि ये जुलाहा है, मोची है, काला है, हबशी है, फला है, ये है, वो है, तो ये उसकी निस्बत में गीबत है। इसी तरह फिर जबान, हाथ या जिस्म के साथ गीबत की एक सूरत उसकी नकल उतारना है। मतलब अगर कोई बात करने में अटकता है, या कोई नाक में बोलता है, या उसकी चाल में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह से चलना, इस तरह से उसकी नकलें उतारना, ये सब कुछ गीबत में शामिल है। क्योंकि अगर हमारे बारे में ये सारा कुछ कोई करता हो तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फिर इसीलिए तो ये गीबत है। तो अब ये देखना है कि क्या गीबत की कोई सूरत ऐसी है जो जायज भी है, क्योंकि बाज औक़ात किसी मुस्लिम भाई की गीबत ये जायज भी हो जाती है, और इसकी गैर मौजूदगी में उसका ऐब बयान किया जा सकता है। वो सिर्फ तब होता है जब दीन का कोई जरूरी काम हो और उसकी गीबत किए बगैर पूरा ना हो सकता हो, तब उसकी गीबत की जा सकती है। यानी अगर किसी ने अपनी बच्ची का रिश्ता करना है, अपने बच्चे का रिश्ता करना है, या किसी ने किसी के साथ कोई कारोबार करना है, तो वो तीसरे बंदे के पास जाके मशवरा लेता है, उसके बारे में पूछता है कि वो कैसा बंदा है, फिर उसके बारे में बताया जा सकता है। क्योंकि आपने फरमाया कि जब तुमसे मशवरा किया जाए ना, तो मशवरे में अमानतदार बनो, मशवरे में खयानत ना करो, अच्छा मशवरा दो। खुदा न खास्ता अगर वो शख्स ऐसा है जो बहुत मारने वाला है, औरतों पे हाथ उठाने वाला है, और वो किसी से मशवरा करने चला जाए कि भाई फलां बंदा कैसा है, मैं अपनी बच्ची की शादी करना चाहता हूँ, हम मरबत में कह भी अच्छा है, वो तो बड़ा अच्छा बंदा, तुम कर दो, तो उसकी बच्ची की जिंदगी अजाब बन जाए, तो ऐसी इस मौके पर गिबत को छुपाना जायज नहीं है। फिर आप बताएंगे, आपको मालूम है कि एक दफा एक सहाबिया फातिमा बिन्नत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने नबी ने सलाम से पूछा कि मैं मुआविया से निकाह कर लूं या अबू जहम से। तो आपने फरमाया कि मुआविया तो कंगाल है, खाली हाथ है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो अबू जहम है वो औरतों को मारता बहुत है, तुम ऐसा करो कि उसामा से निकाह कर लो। अब देख ले, नबी ने सामने खुद अपने सहाबा कराम के बारे में बताया कि फलां ऐसा है, तो फलां ऐसा है, फलां बंदा सही है, तुम उसके साथ शादी करो। तो आपने फरमाया कि ये तो मोमिन का हक है कि जब वो तुमसे मशवरा मांगे तो इसकी खैर खाही करो। तो किसी को किसी के शर से बचाने के लिए, मुसलमानों की खैर खाही के लिए, उनको किसी के शर से बचाने के लिए किसी की गिबत करनी पड़े तो फिर की जा सकती है। इसी तरह अगर फतवा लेने के लिए फतवा लेने के लिए किसी मुफ्ती के सामने किसी की बुराई का जिक्र कर दिया जाए तो ये जायज है। जैसे हजरत अबू सुफियान, उनकी बीवी हिंद, वो नबी इस्लाम के पास आई और उनसे पूछा कि अबू सुफियान जो है ना, वो कंजूस आदमी है, वो मुझे इतना खर्च देता ही नहीं कि जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफी हो, तो क्या मैं उसके इल्म के बगैर उसके माल में से कुछ ले सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे बच्चों के लिए जितना काफी हो वो तुम ले सकती हो। तो यहाँ आपने
اس بیوی کو اپنے خاوند کا عیب بیان کرنے سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ اس نے کسی مقصد کے لیے مسئلہ پوچھا تھا۔ بس یہ یاد رکھے، غیبت کرنا کسی کی بے عزتی کرنے کا مقصد نہ ہو۔ جہاں پہ ضروری ہے غیبت کرنا وہاں کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے کسی عالم سے کوئی بات پوچھنی ہے، کسی کے بارے میں کچھ بتانا پوچھنا ہے، جب تک ہم ان کو بات نہیں بتائیں گے تو ہم کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں نا؟ پھر وہ ہماری بات کا اچھے سے کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر اسی طرح جو شخص لوگوں کے درمیان بیٹھ کے سرے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، ڈاکے مارتا ہو، اعلانیہ شراب پیتا ہو، تو پھر اس کے گناہوں کا ذکر کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ تو خود ہی نہیں چھپ رہا، وہ تو خود بھی اپنی کمزوریاں چھپا نہیں رہا بلکہ سرے عام کر رہا ہے۔ تو پھر اس کی اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو پھر اس میں گناہ نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا غیبت غیر مسلم کی جائز ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اسی طرح ذکر کا اخاک بما یکرہ سے بھی ظاہر ہے کہ صرف مسلمان کی غیبت ناجائز ہے، کیونکہ جو کافر ہے نا وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ کفار کی غیبت کریں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو غیبت کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حقیقت میں غیبت کیا چیز ہے، کب کرنا منع ہے، اور کب یہ بتانا ضروری ہے، اور کب یہ کرنا جائز ہے۔ بس کہیں پر مقصد اپنا کوئی پچھلا بدلہ لینا نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کسی نیکی کے لیے غیبت کریں گے تو آپ کو اس پہ اجر ملے گا، کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے تو آپ کو اس پہ اجر ملے گا۔ بلا وجہ غیبتیں کرنا یہ چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے بدلے لینا یہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جو جانی دشمن بھی ہو اس کو بھی معاف کر دو نا تو اللہ جگری دوست بنا دے گا۔ تو اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرتے ہیں نا حقیقت میں وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ نے یہ بات نہ بھی کی ہو نا کہ وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، پھر بھی اللہ نہیں جاتا وعدوں کے خلاف۔ اگر ہم حقیقتاً دل سے اللہ کی باتوں کو مان لیں نا تو واقعی ہی ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے۔ اور جب ہماری اپنی زندگی آسان ہوتی ہے نا پھر ہم اپنے ماحول کو بھی آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو ویسی ہی نصیحتیں کرتا ہے۔ اگر وہ خود جھگڑالو ہوتا ہے، لڑاکا ہوتا ہے نا، بدلے لیتا ہے بات بات پہ، وہ دوسروں کو بھی یہی کہتا ہے تم بھی ایسے کرو، تم بھی ایسے کرو، ہاں پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود کھولا ہوگا، ٹھنڈے مزاج کا ہوگا، کم از کم غصہ آنے پر بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، دین کو سمجھتا ہوگا، معاف کرنے کی اس کی عادت ہوگی، تو وہ دوسروں کو بھی یہی درس دے گا۔ تو پھر رفتہ رفتہ پورا ماحول کیا، پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف مردوں کا ہی کام تو نہیں ہے نا ماحول کو خوشگوار رکھنا، اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك